کریں گے کیونکہ رمضان ہے. رمضان کے تناظر میں ایک ایسی شاہراہ جو بادی نظر میں ایک تو حیات آباد سے رنگ روڈ ہے، لیکن اگر اس حوالے سے کے پی کی قیادت کوئی اور روٹ بتاتی ہے تو اس کا اعلان آج شام تک ہم کر لیں گے. تمام ایم پی ایس صاحبان اور تمام ایم این ایز اور تمام سینیٹر حضرات اور پاکستان تحریک انصاف کے میئرز، بلدیاتی نمائندے اور پاکستان تحریک انصاف کے مدر پارٹی، یوتھ، آئی ایل ایف، اسٹوڈنٹس ونگ، وومن ونگ، تمام کو خان صاحب کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریلی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی کے طور پر یاد کی جائے. پنجاب سے جو دوست احباب اور پی ٹی آئی کے ورکر جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے. ریلی جو ہے 2 بجے شروع ہوگی. کے پی کی تمام قیادت، مرکزی قیادت، چیئرمین صاحب ہمارے اس کو لیڈ کریں گے، ہم خود اس میں موجود ہوں گے. تمام ورکرز کو استدعا ہے کہ 2 بجے تک جو جس کنوینس کے ذریعے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک اور یہاں جو گرد نواح کی جو اضلاع اٹک ہیں، اسلام آباد ہے، راولپنڈی، جیلم، میاں والی، ان کو بھی ہماری طرف سے دعوت ہے. اور آج شام کو یا رات کو ہم اس میں پوری تفصیل سے ویڈیو میسج کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا روٹ ہوگا اور کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے اختتام پذیر ہوگا. پرامن ریلی ہوگی. آپ سب کمر کس لیں. اور ایک آخری بات، 6 اپریل کو 10 بجے رات پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کا عظیم الشان جلسہ ہوگا. یہی دعوت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں کارکنوں کو، تمام سیاسی قائدین کو، کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، اس میں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلسہ کی انعقاد کی اجازت دی ہوئی ہے، تو لہٰذا کسی قسم کی وائلنس کی توقع نہیں ہے. اور ہم جلسہ گاہ میں لائٹنگ کا، سٹیج کا تمام انتظامات، ڈی جے کا بندوبست کریں گے. کافی عرصے کے بعد ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا تمام جو ہمارے ورکرز ہیں، کارکن ہیں، پاکستانی، پنڈی اسلام آباد کے شہری اور پنجاب بھر کے لوگ، کے پی کے لوگ استدعائیں آئیں اور قیدی 804 کا ساتھ دیں. قیدی 804 کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے. اب یہ تیسرا ماٹو ہمارا بن گیا ہے کہ 6 آنریبل جج صاحبان کے لیٹر کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، اور اس لیٹر میں بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ صرف ان کیسز کے حوالے سے دباؤ ہے جو پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے یا عمران خان ریلیٹڈ کیسز ہے. تو لہٰذا ان ایشوز پہ ہمارے یہ 2 احتجاج ہیں. آپ سے شرکت کی التجا ہے. اس میں وکلاء تحریک جس طریقے سے چلائیں گے شامیں گے، اس کے بارے میں سردار لطیف کوسہ صاحب کچھ کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے. یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے. اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضا بھی کیا ہے کہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، اس کی ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو. اور خدا را 45 سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں کہ ایک اور جو ہے حرد العزیز وزیر اعظم کو جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو 9 مئی سے لے کر 9 فروری پر آ کر فارم 47 کے ذریعے ڈرامہ رچایا گیا ہے، وہ بڑا واضح ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے. اور لندن پلان آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو، اور جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ امبیسڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں داخل کرتا، وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسڈر ہیتھرو ایئرپورٹ پر رخصت کیا، اور یہاں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے. تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کے کیسز کو کتنی سرعت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریت کر کے دودھ کا دھلا ہوا قرار دے کے، اور جس طرح سے 16 مہینے کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت نے جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری رعایات مراعات
फराहम की हैं वो भी सबके सामने है। सो इस साजिश को भी बेनकाब करने के लिए और इन जजेस पर जो तशद्दुद और दबाव का एक कैफियत है उस पर पाकिस्तान की सारी बारों ने, सारी बार काउंसिल्स ने और सारी बार एसोसिएशंस ने एक बड़े सख्त किस्म की अपनी करारदादें भी मंजूर की हैं और उन्होंने मरासले भी लिखे हैं। इस पे हम जो है उसी तरह की वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि अगर अदालत और निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल को अगर मुनहदम कर दिया जाता है तो वो ना रूल ऑफ लॉ रह जाता है, ना आइन की बालादस्ती होती है, ना ही वो रियासत चल सकती है। तो इसलिए इन पर जिस तरह से 6 जजेस ने इजहार किया है ये सारी जगह पे यही कैफियत है। तो इस तरह आपने अगर इंसाफ को जकड़ दिया है और इंसाफ को आपने जंजीरें बांध कर और इस तरह से आपने किया है तो मैं सलाम पेश करता हूँ इन 6 जजेस का जिन्होंने दलेरी करके किया है। और शौकत अजीज का फैसला, शौकत सिद्दीकी साहब का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके तनाज़र में भी जो जज साहबान ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप उसको इंसाफ दे रहे हैं हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा, इंसाफ दीजिएगा। तो जज साहबान भी कौम की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो इनके साथ शाना बशाना है। हम इनके मुहाफिज बन के हम इनके जो है तमाम तर जो तसल्लुत और जबर और इन पर जो है जुल्म ढाया जा रहा है हम इंशाअल्लाह इनके मुहाफिज बनेंगे, इनके खानवादे का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पाकिस्तान के सारे वकला एक ऐसी तहरीक चलाएंगे जो पहले भी हमने दुनिया में साबित कर दिया था कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशो खसाक की तरह बह जाते हैं। और इंशाअल्लाह ये हम अनकरीब शुरू कर रहे हैं इस तहरीक को, इसी को लेकर, इसी बयानिए को लेकर कि कैदी नंबर 804 की विंडिकेशन हो गई। जो इमरान खान कहता था, जो पीटीआई कहती थी कि ये डिक्टेटेड जजमेंट्स बुलडोज की जा रही हैं, वो इन 6 जजेस के मरासले ने उसको साबित कर दिया गया। और उसके साबित करने के बाद अब हम अगर 804 नंबर कैदी की मुखलसी का साथ ही कर रहे हैं तो ये जाहिर है कि इन 6 जजेस ने भी अपने मरासले में ये फैसला दे दिया है। और वैसे भी 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान ने भी बड़ा बांगे दोहल और दो टोक फैसला दे दिया कि इमरान खान ना गद्दार है, इमरान खान ना बागी है, इमरान खान ना मुजरिम है। इसलिए अवाम की रियासत ने जो है फैसला दे दिया। इन 6 जजेस ने तस्दीक कर दी। कमिश्नर रावलपिंडी ने इससे पहले ही तस्दीक कर दी थी कि 13 की 13 जो है ये सीटें पिंडी की जो है 1-1 लाख से जीतने वालों को हमने हराया है। और ये पैटर्न सिर्फ पिंडी डिवीजन का नहीं है, इस्लामाबाद में भी सारी सीटें हारी है, पीटीआई जीती है और पीएमएलएन को जिताया गया है। लाहौर की, मैं खुद लाहौर से मुंतखब हुआ हूँ, लाहौर की सारी सीटें पीटीआई जीती हुई है और एक शख्स हारने वाले को वजीर आजम बना दिया है और हारने वाली दूसरी जो है उसको वजीर आला बना दिया है। और इसी तरह कराची में सारी सीटें पीटीआई जीती हुई थी जो एमक्यूएम को दे दी गई है और पाकिस्तान में भी पैटर्न यही हुआ है। सो इसके जो है तमाम इहाता करते हुए एक ऐसी इंशाअल्लाह तहरीक उभरेगी जो पेशावर से रैली से शुरू होकर और वकला तहरीक तक जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू होंगे और इंसाफ बोल बाला होगा। थैंक यू। रहा करो वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद। एक बड़ी पेशरफ्त हम देख रहे हैं कि आज बड़ी तादाद में सियासी क़यादत भी और वकला की क़यादत भी आज मुलाकात करके आई है। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये कि कल से बहस हो रही है कि जो ये 6 जजेस ने खत लिखा है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया जो कि कल का फोरम नहीं है। ये खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर लिखा जाता तो इसकी हैसियत और आज इस हवाले से और चीफ जस्टिस के मामले में मुलाकात भी है, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक आज की मुलाकात की ताल्लुक है कि बड़े सारी लीडरशिप भी आ गई, तो देखिए बहुत सारों ने पहले से कोर्ट के ऑर्डर लिए हुए थे और वो कंटेम्प्ट में पड़े हुए थे, बार बार वो रिक्वेस्ट करते रहे। ऐसे भी हैं जो 7 मरतबा आए थे और उनको इजाज़त नहीं मिली, तो आज फाइनली इजाज़त मिली है, तो इसीलिए ज़्यादा सारे आ गए क्योंकि पहले से ऑर्डर मौजूद थे।
जहाँ तक जज साहिबान के लेटर का ताल्लुक है तो जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, वो एक इदारा है जो जजेस की कंडक्ट को देखता है और वो इंक्वायरी करता है, सबसे पहले उनको आता है और उन्हीं से कहा गया है कि अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है तो अदालत दोनों तरफ देख सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए मुताल्लिका चीफ जस्टिस साहब जो है वो सारे उसमें मौजूद होते हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आज ज़रूर इलामिया जारी करेगी और इस पर पेशरफ्त होगा, अदरवाइज़ वकला ने भी अपनी राय दी और सारे वकील उसके साथ करेंगे। एक पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ। खत लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसके सरबरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उसमें सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शामिल होते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो लेटर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और पूरी सुप्रीम कोर्ट उस पे बैठ गई। तो लिहाजा ये मैटर जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट दोनों के नोटिस में आ चुका है और दोनों इस पे डेलिब्रेशन कर चुके हैं, एलामिया भी आएगा। हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कालीन के नीचे नहीं दबाएगी बल्कि इस मसले का दायमी हल निकालेगी। शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। लंबी बात नहीं, साथियों ने बड़ी लंबी बातें कर ली हैं और सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बिल आखिर इतनी कोशिशों के बाद हाई कोर्ट के बार बार अहकामात के बाद आज बिल आखिर अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब को देखना जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नसीब हुआ आज माशाल्लाह। मैं इसको मुलाकात तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही काफ़ी है कि उनको देख लिया, उनको सुन लिया और उनसे हाथ मिला लिया माशाल्लाह। और जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे लेकिन तसल्ली से मिलने नहीं दिया गया, यानी कि थोड़ी देर के लिए मिलने दिया और उसमें भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे। तफसीलात में इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा, लेकिन हमारे साथियों ने बड़ी डिटेल में बात की है। एक तो इमरान खान ने कहा है कि इतवार को पेशावर में इंशाल्लाह सब इकट्ठे हो रहे हैं, इतवार की दोपहर सारे इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे और अपना भरपूर इसमें हमारे वकील, हमारे यूथ सब लोग इकट्ठे होंगे। आप सबको दावत है कि आप पहुँचे पेशावर और पेशावर में हम एक ज़बरदस्त वहाँ पे रैली का इनेकाद करेंगे। दूसरा, इस्लामाबाद में 6 तारीख को तरावियों के बाद इंशाअल्लाह एक तारीखी जलसा जो है उसका इनेकाद होगा। और ये जो पेशावर में हमारी हो रही है और जो इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है, इसका उन्वान है कैदी नंबर 804 की रिहाई। कैदी नंबर 804 की रिहाई। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, कैदी नंबर 804 की रिहाई। और दूसरा, आज़ाद अदलिया की आज़ादी के लिए। तो ये 2 इमरान खान साहब ने जो थीम्स हैं वो बताए हैं कि इस पे कौम पूरी ने यकजा होना है और मिलके ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, वकला, सोसाइटी के हर तबके से, क्योंकि आप खड़े होंगे इंसाफ के साथ। और अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में हमें बताया है कि ज़मीन पर, मेरी ज़मीन पर इंसाफ कायम करो, तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, सब शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि अदल और इंसाफ के साथ हम खड़े हों।